Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, today we will start with history chapter ruling the countryside. History chapter 3 ruling the countryside. So take out your books and pencils. I will ask you to mark the important terms of the chapter. Okay students? In this chapter we are going to cover the ruling the countryside. They have started ruling the countryside, means villages also, and the topics of this chapter will be the company becomes the diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture, a new system is devised, the Monroe system, and all was not well. So student, on 12th August 1765, Mughal emperor appointed as the Diwan of the Bengal. ठीक है, Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of the Bengal. Who appointed? Mughal emperor. ठीक है. So after that, what is Diwani? Diwani means right to collect tax. Now I am going to show you through video. Student, let's start with history chapter 3 ruling the countryside. In the previous chapter, from trade to territory, we have read that Britishers came here for trade, but they led to territory. And in this chapter we will read ruling the countryside, means now they started ruling the countryside, ruling the villages also. In this video we will cover the following topics: that the company becomes the diwan, revenue for the company, the need to improve agriculture, a new system is devised, the Monroe system, all was not well. This topic will be covered in this video. First of all, if we talk about the company becomes the diwan, on 12th August 1765, on 12th August 1765, Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. What does it mean? Diwan of Bengal means right to collect taxes. आपके दिमाग में ये आया होगा कि दीवान क्या होता है? दीवान मीन्स राइट टू कलेक्ट taxes. Now we will read through screen. Okay. So student, as I told you that the company becomes the diwan, this is a picture where you can see कि कंपनी कैसे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना रही है. बंगाल का दीवान बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को. नवाब्स किस तरीके से बना रहे हैं. ठीक है. As you can see, on 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The company becomes the Diwan. मतलब कि जो टैक्सेस के राइट थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स थे, अब वो किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गए. अब उनको लगा कि हमारा बहुत अच्छा रेगुलर फ्लो बना रहेगा इनकम का. और ये कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ था. और किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट किसने किया था? दिवान ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर ने. और कब किया था? अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको. अब क्या हुआ? कंपनी क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी. सारा बंगाल का प्रोविंसेस इसके कंट्रोल में आ गया. अब वो टैक्सेस जैसे मर्जी कलेक्ट करें, जितने टैक्सेस लगाएं, उनकी इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा सा रीज़न बन गया. क्या? दीवानी उनके पास आने से. अब सारे फाइनेंशियल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव के उनके हाथ में आ गए. तो बच्चों, दीवानी का मतलब सिर्फ इतना सही है कि उनके पास नाउ दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. Now what happens बच्चों? Over the years, the company also learned that it had to be moved with some caution. उनको लगा कि हमें कुछ caution रखनी पड़ेगी, कुछ precaution अपनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हम लोग alien हैं, हम लोग यहाँ पर बाहर से आए हैं. तो हम लोगों को, उन लोगों को जो कि अभी तक यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, they said that we are alien
rule who in the being an alien power it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside. अभी तक कंट्री साइड पे जिन नवाब या किंग्स का रूल था हमें उनको अपने फेवर में रखना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने ब्रेनी ट्रिक्स अप्लाई करी कि जब वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, वो हमारे फेवर में रहेंगे, तभी हम यहाँ पर अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉलो करी। ठीक है बेटा, अब आता है सेकेंड टॉपिक, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नाउ द कंपनी हैड बिकम द दीवान, दीवान तो बन गया, लेकिन वो अभी तक अपने आप को एक ट्रेडर ही समझ रहा था। दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू and the assessment of revenue. So they appointed the jamidar to collect the revenue. Clear? A large system. The effort was to increase the revenue as much as it can, but buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of the goods bought by the company in Bengal doubled. बेटा 1865 के अगर पहले की बात करें तो अभी तक उनको अगर कुछ खरीदना होता था, यहाँ से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या एक्सपोर्ट होता था? स्पाइसेस, स्पाइसेस बहुत, कॉटन, सिल्क, ये वहाँ पर एक्सपोर्ट होता था। तो वो लोग अपना जो एक्सपोर्ट करते थे उसको, और उसको यहाँ पर गोल्ड से उसको करते थे, वहाँ से जो गोल्ड आता था वो यहाँ पर इंडिया में देते थे और उसके बदले में वो यहाँ पर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास दीवानी के राइट्स आ गए। दीवानी के राइट्स आ गए तो अब उन लोगों ने क्या किया, जो उनको दीवानी से रेवेन्यू मिल रहा था, जो इनकम हो रही थी, उससे वो लोग यहाँ पर चीप रेट में सामान खरीदते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे। तो उनका क्या हुआ, विद इन द 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर को मंगवा कर वो लोग ये चीज़ को इनकैश करते थे। लेकिन अब नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस। Soon it was clear that Bengal economy was facing deep crisis. अब बंगाल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा झटका लगा, डीप क्राइसिस हो गए, वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए, आर्टिसंस अपनी जगह छोड़ के जाने लगे, पीजेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे। तो इन सब का रिजल्ट इसके बाद सोने पे सुहागा जिसको हम बोलेंगे, इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइड। अब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आप लोग, एक टेरिबल फेमाइन कब आया था? 1770 में एक फेमाइन आया जिसने मिलियन ऑफ पीपल को वहाँ के बंगाल को मार दिया। अबाउट 1/3 ऑफ द पीपल पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, 1/3 पॉपुलेशन को वाइप्ड आउट हो गए, लोग मारे गए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इसके बाद कब? 1793 में, है ना, फेमिन के 2 डिकेड्स के बाद ऑलमोस्ट एक, अब उनको लगा कि अगर ऐसे इकोनॉमी रूल्स होगी तो हमारी इनकम कहाँ से आएगी। उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रूल्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या कंपनी को रेवेन्यू इनकम मिल पाएगी। अब उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना शुरू करा। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उनको लगा कि यहाँ से हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो दे अपॉइंटेड जमींदार टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, and it was also called as permanent settlement system. Why it was called permanent settlement system? It was called permanent settlement system because the amount which was taken as the revenue by the peasant was fixed. सपोज मैं आपको समझाती हूँ कि जमींदार क्या होगा, मिडिकर हो गया। जमींदार इज मिडिकर बिटवीन द peasants and the East India Company. He collects the revenue from the peasant and handed it over to the ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब जमींदार भी खुश कि हाँ मुझे यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। अब उन्होंने बोला कि जैसे सपोज 100 रुपीज़ हमको आपसे लेने हैं पर ईयर एज अ रेवेन्यू। जमींदार वो कलेक्ट करता था उनसे, अगर उसकी 105, 110 इतना रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो ऊपर का पैसा, ये मनी था, बीच का जो गैप था, वो जमींदार के पास आ जाता था। इसको बोलते थे परमानेंट, क्योंकि ये फिक्स था, परमानेंट अमाउंट फिक्स था कि इतना आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, ये सिस्टम आया था 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजाज एंड द तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको करो फिक्स परमानेंटली। क्या फिक्स था? जो अमाउंट उनको फिक्स करना था वो बिल्कुल फिक्स था। अब ये कॉफर्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉफर्स, मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे खजाना। अब उनको क्या लग रहा था, इससे हमारी रेगुलर इनकम आती रहेगी, हमने फिक्स कर दिया इतनी इनकम तो हमको बैठे बैठे मिलेगी सही, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। लेकिन इस
कंडीशन में भी, इस परमानेंट सेटलमेंट में भी, इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलेंगे, इस परमानेंट सेटलमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। बेटा इधर आपको पिक्चर दे रखी है चार्ल्स कॉर्नवालिस की, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यूज हुआ था इंट्रोड्यूस, तो उस समय यहाँ के गवर्नर कॉर्नवालिस थे। नाउ अब क्या हुआ, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, चलो उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, problem. The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that जमींदार was in fact not investing in improvement of land. जमींदार जमीन की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। बेटा हो क्या रहा था, जो उनको बहुत हाई टैक्सेस थे, बहुत हैवी टैक्सेस उनको पे करने पड़ रहे थे, वो टैक्सेस उनको उतने वहाँ से मिल नहीं रहे थे, तो जमींदार पर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, जमींदार उस सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, इनफैक्ट उनकी जमींदारी जा रही थी। नाउ लेकिन फर्स्ट डिकेड के बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी के सिचुएशन चेंज हो गई, एग्रीकल्चर करने लगा, एग्रीकल्चर जो प्राइसेस ऑफ मार्केट थे वो रोज़ हो गए, कल्टीवेशन बिल्कुल बढ़ गया। अब क्या हुआ बेटा, उनको मिलने लग गया ज़्यादा रेवेन्यू, किसको, जमींदार्स को। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास क्या था, वो फिक्स था, ब्रिटिशर्स को फिक्स था कि उतना ही मिलेगा, चाहे उनको कितना बेनिफिट हो, चाहे उनको कितना लॉस हो। अभी तक वो लॉस में जा रहे थे, तो जमींदार्स वर नॉट सेटिस्फाइड इन द कंडीशन 1, but in condition 2 Britishers were not satisfied because they were not getting the increasing amount which was taken by the zamindars as a revenue। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो जमींदार थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और सेकंड कंडीशन में ब्रिटिशर्स, देयर वाज नॉट अ कोरिलेशन नहीं था उन दोनों के बीच में, किसी तरीके का कोई तालमेल नहीं था, दोनों को एक दूसरे की बातों को समझ नहीं आ रही थी, तो ये सिस्टम बहुत मुश्किल हो रहा था आगे कंटिन्यू करना। सेकेंड प्रॉब्लम, इवन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, जमींदार को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कंडीशन को इम्प्रूव करने में। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कही जा रही थी, और जब तक सॉइल की कंडीशन, एग्रीकल्चर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक मनी जनरेट नहीं होगी। Another problem क्या थी? Another problem was facing by peasants. They thought that they were oppressive, they are being exploited. उनका बहुत ज़्यादा exploitation हो रहा है, हाई रेंट उनको देना पड़ रहा है, और कई बार तो क्या होता था कि जब वो लोन लेते थे, वो लोन पूरा नहीं करा पाते थे, तो उनकी ज़मीन भी ली जाती थी। कौन सी ज़मीन? जो कि उनकी जनरेशन से उनके पास थी। देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, when he failed to pay, he here means peasants. When he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generation. अभी तक जनरेशन के लिए ने अभी तक जो कल्टिवेटेड की थी, वो लैंड से भी उनको हाथ धोना पड़ता था, वो लैंड भी उनको नहीं मिल पाती थी, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रही थी? बहुत हाई रेंट था, बहुत हाई टैक्सेस उनको कलेक्ट करने पड़ रहे थे, जो कि जमींदार कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, दे वर लीस्ट बॉर्डर अबाउट द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉब्लम, जब कुछ फ्लरिश हुआ, जब एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, एग्रीकल्चर में राइस आया, तो उस समय इन लोगों को लगा कि जो जमींदार है वही बीच का पैसा खाता जा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटिस्फाइड नहीं थी, है ना। और दूसरा बोला गया कि जमींदार जो थे वो एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। थर्डली ये वाली प्रॉब्लम सामने आई कि जो पीजेंट्स थे वो ऑपरेसिव फील कर रहे थे, उनको अपनी लैंड से भी हाथ धोना पड़ रहा था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद क्या हुआ बेटा, एक नया सिस्टम आया, उस नया सिस्टम को बोला गया अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस, मीन्स अ न्यू सिस्टम केम इनटू इफेक्ट, दैट वाज कॉल्ड एज महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आप ये समझ लीजिए महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब उन लोगों ने क्या किया, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। अब इसको चेंज करना चाहिए, कैसे परमानेंट फिक्स हो सकता है। अब ये कहाँ पर सबसे पहले आया बेटा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, बंगाल में, बंगाल में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि आजकल का एरिया उत्तर प्रदेश का माना जाता है, इंग्लिश मैन, इनको लाइन करिए बेटा, अ पर्सन नेम
हॉल्ट मैकेंजी devised the new system which came into effect in 1822. This system was also known as Mahalwari system. Mahal means village और Mahalwari system means a group of village. Group of villages को इकट्ठा करके उन्होंने एक कलेक्टर को अपॉइंट किया कि ये कलेक्टर वहाँ पर जाएगा और देखेगा कि किस किस विलेज से हमको कितना रेवेन्यू मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ लैंड एंड द पीपल वर्किंग देयर। ठीक है, उन्होंने एक पूरा असेसमेंट तैयार किया गया। तो इस असेसमेंट के लिए इस बार इन लोगों ने क्या चेंज किया बेटा, महल हुआ। दिस डिमांड वॉज हाँ कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज अंडर हिज डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन से? अंडर हॉल्ट मैकेंजी। कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब कितना एक प्लॉट में से यानी कि एक विलेज में से उनको विलेजेस में डिवाइड कर दिया गया, कितना रेवेन्यू आता है उसका पूरा असेसमेंट कलेक्टर्स ने निकाल लिया, है ना। विलेज हेयर मीन्स महल। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली। अब इन्होंने पहले जो गलती की थी वो गलती अभी नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने रेवेन्यू को फिक्स ना रखकर पीरियोडिकली कर दिया। पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम चेंज। ठीक है, अगर उनको लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहा है, उसमें उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, तो वो उसको राइज कर देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम चेंज। सेकेंड चेंज इन्होंने ये लाया कि अब जो उन्होंने अपॉइंट किया कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, वो विलेज हेडमैन को कर दिया। ठीक है, पहले उन्होंने जमींदार को किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में परमानेंट था, इसमें पीरियोडिकली हो गया और इसमें विलेज हेडमैन हो गया। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रैदर देन द जमींदार। अब जमींदार को नहीं कहा गया, इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम भी कहा गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन वॉज महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1822। हु इंट्रोड्यूस महलवारी सिस्टम? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ये तो कहाँ की बात हो गई, हमारी नॉर्थ की। अब हम आते हैं साउथ में। साउथ में एक दूसरा सिस्टम चल रहा था, वो था द मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम को रॉयतवारी सिस्टम भी कहा जाता था। और मुनरो सिस्टम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये it was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas, underline it, that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। ये कौन सा एरिया था बेटा? ये वो वाला एरिया था जो कंपनी ने टीपू सुल्तान को हरा कर अपने कब्जे में कर लिया था। जैसा कि अपना था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में हमने ये पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड, किस तरीके से वो विलेजेस पे भी अपना पूरा का पूरा कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर भी नहीं रहा। अभी नॉर्थ में कौन सा आया? महलवारी। साउथ में कौन सा सिस्टम हम पढ़ेंगे? मुनरो सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सिस्टम अब वहाँ पर भी नहीं रहा। अब परमानेंट सिस्टम को नॉर्थ में किसने रिप्लेस किया? महलवारी सिस्टम ने। और साउथ में किसने किया? रॉयतवारी सिस्टम ने। ठीक है, इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड। इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। इसको मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं और रॉयतवारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको बाद में डेवलप किया और ये पूरा साउथ इंडिया में धीरे जाके ये इधर अपने नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक भी फैल गया। ठीक है बच्चों, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। उनको लगा कि अब वो वहाँ पर ट्रेडिशनल जमींदार्स को ढूंढ रहे थे। जैसे कि उन्होंने अभी किसको अपॉइंट किया? विलेज हेडमैन को। और उसमें परमानेंट सेटलमेंट में किसको किया था उन्होंने? जमींदार्स को। अब उनको लग रहा था यहाँ पर कोई मीडिएटर मिले जो कि हमारे बिहाफ में कलेक्ट कर सके रेवेन्यू, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब उनको लगा कि हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाना है कल्टिवेटर से, रॉयट से। ठीक है, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन। वो अभी तक बहुत टाइम से जनरेशन से लैंड को टिल्ड करते हुए आ रहे हैं। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वे बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। रेवेन्यू असेसमेंट बनने से पहले उनके पूरे फील्ड को केयरफुली असेस किया गया। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चेन। अब उनको लगा कि हम खुद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाएंगे, हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, हम ही कलेक्ट करेंगे और हम क्या कौन सी फिगर का काम करेंगे उनके लिए? पैटर्नल फादर फिगर के रूप में हम लोग काम करेंगे उनके लिए। ठीक है, ये किस में हुआ बेटा? हम अभी कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? रॉयतवारी सिस्टम या मुनरो सिस्टम। ठीक है,
नाउ ऑल वॉज नॉट वेल। इतना होने के बाद भी सब कुछ हम नहीं कह सकते अच्छा है, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हाई रेंट की प्रॉब्लम्स थी, हमारे पीजेंट्स जो थे कल्टिवेटर ऑप्रेसिव फील कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की जो रेट्स थी बहुत हाई थी, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रेट्स थी दैट वॉज वेरी हाई। Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. अब क्या था उनका मेन मोटो क्या था? देयर मेन मोटो वॉज टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द मनी, टू इंक्रीज देयर इनकम। हुज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो सिर्फ उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी और कोई चीज़ नहीं चल रही थी। Driven by the desire to increase the income from land, revenue official fixed too high revenue demand। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई? जो रेवेन्यू रेट थी वो बहुत हाई थी, पीजेंट्स उनको दे ही नहीं पा रहे थे, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, रॉयट्स फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। उन्होंने छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब उनको इतना लॉस हो रहा था, वो बेचारे और क्या कर सकते हैं ना बच्चों। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmer, but this did not happen। उनको ऐसा लगा था कि इससे peasants की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो लोग विश्वास करते हैं, आशावादी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हाँ सब कंडीशन ठीक हो जाएंगी, पर सब कंडीशन ठीक नहीं हुई। तो बेटा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, रीड इट केयरफुली। I hope you understood the chapter. There you can mark a internal question also beta. On page number 29 you can mark the internal question. Number 1, when did the महलवारी system come into existence? मैंने आप लोगों को बता दिया, महलवारी system came into existence in 1822. 1822 it was also called as रॉयतवारी system. नहीं, महलवारी system was not called as रॉयतवारी system, it is महलवारी system. After that we were the रॉयतवारी system was introduced. So I hope you understood the chapter बच्चों. Read it carefully. Thank you.